بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش۔ کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ الحوثی ماریب صوبے میں فوجی آپریشنز اور سعودی عرب پر حملے روکیں، امریکہ نے کیا مطالبہ۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا انسانی بحران اور سنگین ہو سکتا ہے۔ بائیڈن حکومت سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر دوبارہ غور کر رہی ہے، محمد بن سلمان کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ صرف الفاظ سے مطمئن نہیں ہوں گے، نیوکلیئر ڈیل پر عمل دیکھنا چاہتے ہیں، خامنائی کا خطاب۔ ایران اور رشیا کی سمندری مشقیں شروع۔ سیریا کی صورتحال پر ترکی ایران رشیا میٹنگ، امریکہ نے حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل آگ سے نہ کھیلے، جارحانہ سرگرمیوں کا سخت جواب دیں گے، حسن نصر اللہ کی وارننگ۔ دبئی کی شہزادی کا ویڈیو منظر عام پر، کہا قید میں ہوں، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا UAE سے معاملہ اٹھائیں گے۔ میانمار میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے جاری، یانگون میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر، حکمرانوں نے کہا الیکشنز کرائیں گے۔ بیرونی سفیر کشمیر پہنچے، DDC چیئرمین اور دوسروں سے ملاقات، علیحدگی پسندوں نے منایا بند۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات مڈل ایسٹ کے مسائل سے۔ امریکہ نے یمن کے الحوثیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے فوجی آپریشنز روکیں۔ یمن کے ماریب صوبے میں پچھلے کچھ دنوں سے زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ماریب میں الحوثیوں کا حملہ جنگ ختم کرنے کی کوششوں کے مطابق نہیں ہے۔ انسانی معاملات سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے دفتر کا اندازہ ہے کہ پچھلے 6 سال میں یمن کے الگ الگ حصوں سے ماریب میں 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے پناہ لی ہے۔ ایران کی مدد رکھنے والے الحوثیوں نے تیل کی دولت سے مالا مال ماریب صوبے پر قبضے کے لیے ایک زبردست آپریشن شروع کیا ہے۔ ماریب یمن کے دارالحکومت صنعا سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ الحوثیوں نے 2014 میں سعودی عرب کی سرپرستی رکھنے والی ہادی حکومت کو بے دخل کرتے ہوئے صنعا پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ الحوثیوں کے حملے سے بے گھر لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور یمن بحران اور سنگین ہوگا۔ پہلے سے ہی یمن جنگ کی وجہ سے ملک میں بدترین انسانی بحران ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اگر الحوثی بات چیت کے ذریعے اس بحران کو حل کرنے کے تعلق سے سنجیدہ ہے تو انہیں فوری اپنی پیش قدمی روکنی چاہیے اور سعودی عرب پر حملے بند کرنے چاہیے۔ الحوثیوں نے پچھلے دنوں سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر ایک حملہ کیا تھا، جہاں پر ایک سویلین ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی تھی۔ وقفے سے ایسے حملے کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی بائیڈن حکومت نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ امریکہ یمن جنگ میں سعودی عرب کی مدد نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ الحوثیوں کو دہشت گرد قرار دینے کا ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کا فیصلہ الٹ دیا گیا تھا۔
यूनाइटेड नेशंस के अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अलहूसियों की सरगर्मियों से यमन में इंसानी बहरान और संगीन हो सकता है। इंसानी मामलात के चीफ मार्क लुकॉक ने कहा कि मारीब के दारुल हुकूमत पर हमले से 2 मिलियन सिविलियंस खतरे में पड़ जाएंगे और हजारों लोग फरार पर मजबूर होंगे। इसके नतीजे में ऐसे असरात पड़ेंगे जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये वक्त है कि तनाव कम किया जाए, यमन के अवाम की तकलीफें दूर की जाएं। उन्होंने एक बयान में अलहूसियों का नाम नहीं लिया। अमेरिका की नई जो बाइडेन हुकूमत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रही है। खासतौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ रिश्तों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान अमलन सऊदी अरब के हुक्मरान हैं। साबिक डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को काफ़ी अहमियत देती थी और मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज़्यादा मकाम दिया गया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सैकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों पर दोबारा गौर कर रहे हैं। नई कोशिशों के तहत बराबरी के ओहदों पर ताल्लुकात और राब्ते होंगे। सदर के हम मनसब या काउंटर पार्ट शाह सलमान हैं। क्राउन प्रिंस के हम मनसब या काउंटर पार्ट अमरीका के वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मामले को नज़रअंदाज किया था, जिसमें जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का कत्ल भी शामिल है, जिसके बारे में ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस कत्ल का हुक्म दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ यमन जंग को नज़रअंदाज कर दिया था, बल्कि इस जंग में बढ़ चढ़ कर सऊदी इत्तेहाद की मदद की थी और उसे हथियार सप्लाई किए थे। इसके अलावा बाइडेन हुकूमत ने ईरान न्यूक्लियर डील में वापसी में दिलचस्पी ली है, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहता। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि वो न्यूक्लियर डील पर अमल देखना चाहते हैं, वो सिर्फ अल्फाज से मुतमईन नहीं है। खामनाई ने तबरीज शहर के एक डेलीगेशन से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अल्फाज सुन लिए, अब हम अमल चाहते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां फिर से लगा दी थीं। ईरान और रशिया की समंदरी फौजों ने इंडियन ओशन के इलाके में जंगी मशक़ें शुरू की हैं। इन मशक़ों में 17,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके का अहाता किया जा रहा है। इस मौके पर ईरान के रेयर एडमिरल गुलाम रजा ने कहा कि इन मशक़ों का मकसद आलमी समंदरी तिजारत की सिक्योरिटी बढ़ाना, दहशतगर्दी और समंदरी लूट को रोकना और मालूमात का तबादला करना है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी भी इन मशक़ों में हिस्सा लेगी, जिसके ज़रिए अमन और दोस्ती का पैगाम दिया जाएगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने बताया कि ये मशक़ें 3 दिन तक जारी रहेंगी। ईरान, रशिया और तुर्की के अहदेदारों की एक मीटिंग रशिया के सूची शहर में हुई, जिसमें सीरिया की सूरत हाल पर गौर किया गया। ये इस तरह की 15वीं मीटिंग थी। ये कॉन्फ्रेंस कल भी जारी रहेगी। इस मीटिंग में सीरिया की दस्तूरी कमेटी, सीरिया के इलाकों पर दमिश्क की अमलदारी, रेफ्यूजियों के मसले, कैदियों के तबादले और अमरीका और मगरबी मुल्कों की पाबंदियों से निमटने के रास्तों पर गौर किया जा रहा है। इस मौके पर ईरानी सफ़ीर ने कहा कि तीनों मुल्क चाहते हैं कि आस्ताना फॉर्मेट के तहत ताउन मजबूत किया जाए और सीरिया में अमन और इस्तेहकाम की हिफाजत की जाए। इस दौरान अमरीका ने सूची कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए रशिया की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को वार्निंग दी है कि वो आग से ना खेले। उन्होंने कहा कि लबनान के खिलाफ इसराइल की जारहाना सरगर्मियों का सख्त जवाब दिया जाएगा। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के शहीदों, खासतौर पर एक कमांडर इमाद मुगनिया की बरसी के मौके पर टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए ये बात कही। इमाद मुगनिया को 2008 में सीरिया में हलाक किया गया था। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह फौजी टकराव नहीं चाहती, लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया तो वो पहले से ज्यादा मुज़ाहमत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने कभी भी आलमी कानून के तहत काम नहीं किया है। उसने कई शहरों को नीस्त नाबूद किया है और कई सिविलियंस को हलाक किया है। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन हमने हमारे शहीदों के खून को नहीं भुलाया है। अगर टकराव होता है तो हम इसका जवाब देंगे। अगर तुम हमारे शहरों पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे शहरों पर हमला करेंगे। अगर तुम हमारे देहातों पर हमला करेंगे तो हम तुम्हारी आबादियों पर बम बरसाएंगे। लबनान सरहद के करीब इसराइल की जंगी मशकों के बारे में हसन नसरुल्लाह ने काबिज ताकत को वार्निंग दी और कहा कि ये मशकें इसराइल के लिए खतरनाक खेल हैं, उसके खराब नतीजे निकल सकते हैं। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अल-हूसी मारीब सूबे में फौजी ऑपरेशंस और सऊदी अरब पर हमले रोकें, अमेरिका ने किया मुतालबा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा इंसानी बहरान और संगीन हो सकता है। बाइडेन हुकूमत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रही है, मोहम्मद बिन सलमान को अहमियत नहीं दी जाएगी। सिर्फ अल्फाज से मुतमईन नहीं होंगे, न्यूक्लियर डील पर अमल देखना चाहते हैं, खामनाई का खिताब। ईरान और रशिया की समंदरी मशक़ें शुरू। सीरिया की सूरत हाल पर तुर्की ईरान रशिया मीटिंग, अमेरिका ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसराइल आग से न खेले, जारहाना सरगर्मियों का सख्त जवाब देंगे, हसन नसरुल्लाह की वार्निंग। दुबई की शहजादी का वीडियो मंजर आम पर, कहा कैद में हूं, यूनाइटेड नेशंस ने कहा UAE से मामला उठाएंगे। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी, यांगून में हजारों लोग सड़कों पर, हुक्मरानों ने कहा इलेक्शंस कराएंगे। बैरूनी सफीर कश्मीर पहुंचे, DDC चेयरमैन और दूसरों से मुलाकात, अलहदगी पसंदों ने मनाया बंद। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात म्यांमार की। म्यांमार या बर्मा में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुल्क के दूसरे बड़े शहर यांगून में अवाम की बड़ी तादाद ने मुजाहरों में हिस्सा लिया जब से फौजी बगावत हुई। दारुलकुमत नेपिता, यांगून और दूसरे शहरों में फौजी हुक्मरानों के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों के दौरान बाज़ जगह झड़पें भी हुई और कई एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। यांगून में एहतजाजियों ने बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जिसके जवाब में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए मुजाहिरों में हिस्सा लिया। म्यांमार की फौज ने नए इलेक्शंस के वादों को दोहराया है। इस दौरान आंग सान सूची पर नए इल्जामात लगाए गए हैं। फौजी बगावत के बाद आंग सान सूची और दूसरे कई लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है कि उसके सिपाही 20 साल बाद अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डन ने यह ऐलान किया। इस फैसले के बाद अफगानिस्तान में न्यूजीलैंड का एक भी सिपाही बाकी नहीं रहेगा। न्यूजीलैंड ने 2001 में अमरीकी इत्तेहाद में शामिल होकर अपने 3,500 सिपाहियों को रवाना किया था। आहिस्ता आहिस्ता इन सिपाहियों की तादाद में कमी की गई। फिलहाल न्यूजीलैंड के सिर्फ 6 सिपाही अफगानिस्तान में तैनात हैं।
यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वो दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी प्रिंसेस लतीफ़ा की हिरासत का मामला यूएई के साथ उठाएगा। प्रिंसेस लतीफ़ा ने कहा है कि उनके वालिद ने उन्हें दुबई में कैद कर रखा है। उन्होंने 2018 में भागने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हो सकी। बीबीसी को एक खुफिया वीडियो मिला है जिसमें देखा जा सकता है कि प्रिंसेस लतीफ़ा कह रही हैं कि उनकी जान खतरे में है। इस वीडियो के सामने आने के बाद आलमी सतह पर यूनाइटेड नेशंस से मुतालबे किए जा रहे हैं कि वो इस मामले की तहकीकात कराए। इस दौरान बरतानिया के ओहदेदारों ने इसे एक नाजुक मामला करार दिया और कहा कि वो इस केस पर नज़र रखे हुए हैं। दुबई और यूएई इससे पहले कह चुके हैं कि प्रिंसेस अपने ख़ानदान के पास महफूज है, लेकिन इस वीडियो में शहजादी ने कहा है कि उन्हें एक जेल में रखा गया है जो विला है जिसे जेल में बदला गया है। प्रिंसेस लतीफ़ा ने 2018 में आखिरी बार मंजर आम पर आकर शिकवा किया था कि उनके वालिद उन्हें कैद में रख रहे हैं। उन्होंने एक कश्ती के जरिए भागने की कोशिश की थी, लेकिन यूएई और इंडिया की फोर्सेस ने उन्हें पकड़ा और दुबई वापस भेज दिया। ये फरार की उनकी दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 2002 में जब वो एक नौजवान लड़की थी, यूएई से भागने की कोशिश की थी। ताज़ा वीडियो में प्रिंसेस लतीफ़ा कह रही हैं कि मैं एक बंधक हूँ, ये विला जेल में बदल दिया गया है, तमाम खिड़कियां बंद हैं, मैं कोई खिड़की नहीं खोल सकती, मैं कैद तन्हाई में हूँ, मुझे इलाज तक की रसाई हासिल नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कुछ भी नहीं। बताया गया कि प्रिंस लतीफ़ा ने बाथरूम में ये वीडियो तैयार किया। गैर मुल्की सफ़ीरों के एक डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू किया, जिसके दौरान वो डीडीसी इलेक्शंस और आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इस डेलीगेशन में 24 मुल्कों के सफ़ीर शामिल हैं। इनमें चिली, ब्राज़ील, क्यूबा, बोलीविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, इटली, बांग्लादेश, मलावी, एरिट्रिया, घाना, सेनेगल, मलेशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान शामिल है। ये दौरा जुमेरात को भी जारी रहेगा। इस दौरे का आगाज़ वादी कश्मीर से हुआ, जहां पर इस डेलीगेशन ने डीडीसी चेयरमैन और दूसरों से मुलाकात की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरे के मद्देनज़र अलहदगी पसंदों ने हड़ताल और बंद की अपील की थी। इसके जवाब में वादी में ज़बरदस्त बंद मनाया गया। दूसरे दिन ये डेलीगेशन जम्मू जाएगा। इससे पहले बाज़ दूसरे मुल्कों के सफ़ीरों को भी जम्मू कश्मीर का दौरा कराया गया था। ये टीम डीडीसी अरकान, अहम शख्सियतों और दूसरों से मुलाकातें कर रही है और रियासत की सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कोशिशों का जायज़ा ले रही है। एक दिन पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा में बैरूनी सफ़ीरों के एक डेलीगेशन को तलब करते हुए जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वकील और सामाजिक कारकुन निकिता जैकब को टूल किट केस में ट्रांजिट बेल दे दी है। उन्हें 3 हफ्तों तक गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया गया है। दिल्ली पुलिस टूल किट मामले में निकिता जैकब और दूसरों की तलाश में थी। इस मामले में बेंगलोर में एक 21 साल माहौलियाती कारकुन दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क में इंसानी हुकूक की तंजीमों और अपोजिशन पार्टियों और किसान तंजीमों ने एहतजाज किया है। दिशा ने मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु के साथ मिलकर किसान एहतजाज के सिलसिले में एक टूल किट बनाई थी। दिल्ली पुलिस का ये कहना है। इस टूल किट को आलमी माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर शेयर किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस टूल किट के जरिए इंडिया की इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और मुलजिम शांतनु को भी गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया। इंडिया की बाज़ रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल फिर से नाजुक होती जा रही है। इनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने वार्निंग दी है कि रियासत में फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में 3 से 4 हज़ार कोविड केस सामने आ रहे हैं। हालांकि केसेस इससे काफ़ी कम हो गए थे। एक दिन पहले आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने फैसला किया कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर सख्त जुर्माने लगाए जाएंगे।
कर्नाटक के बेंगलोर में भी कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर पर 2 हॉट स्पॉट्स उभरे हैं, जिनमें एक नर्सिंग होम और एक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट में 100 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। नर्सिंग होम में भी कई मामला सामने आए हैं, जिसके बाद केरला से कर्नाटक में सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। ओहदेदारों ने आवाम से कहा है कि वो चौकस रहें और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। इस दौरान चारशंबे को इंडिया में 11,610 नए कोविड केस पाए गए। वजारत सेहत ने ये बात बताई। मौतें भी काफ़ी कम रिकॉर्ड की गई। वजारत सेहत ने बताया कि तकरीबन 90 लाख लोगों को अब तक कोविड-19 वैक्सीन दे दी गई है। यूएई में कोविड-19 के 3,452 नए केसेस पाए गए हैं और 14 मौतें हुई हैं। यूएई की वजारत सेहत ने ये बात बताई। यूएई और मिडल ईस्ट के कई मुल्कों में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके मद्देनज़र पाबंदियां लगाई गई हैं। फ़लस्तीनी ग्रुपों ने एक बयान में दुनिया से अपील की है कि वो गाज़ा में कोरोना वायरस वैक्सीन पहुंचाने के लिए काम करे और इसराइल पर दबाव डाले। इसराइल ने गाज़ा में कोविड वैक्सीन की सप्लाई रोक दी है। नाइजीरिया में बंदूक बरदारों ने सैकड़ों स्कूली बच्चों का अगवा कर लिया है। फौजी वर्दी पहने हुए बंदूक बरदारों ने एक स्कूल पर हमला किया और इन बच्चों का अगवा किया। ये वाकया कगारा टाउन में पेश आया। इस हमले के दौरान एक बच्चा मारा गया। ओहदेदारों ने बताया कि बंदूक बरदारों का ताल्लुक मुजरिम टोलियों से है। क्रिकेट। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया है। टीम में मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किया गया है और न ही रविंद्र जडेजा शामिल हैं। टीम इस तरह है: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, मयांक अग्रवाल, शुभमन गिल, छटेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, वृद्धिमान साहा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इस सीरीज में पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था और दूसरा इंडिया ने जीता और फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अल-हूसी मारीब सूबे में फौजी ऑपरेशंस और सऊदी अरब पर हमले रोकें, अमेरिका ने किया मुतालबा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा इंसानी बहरान और संगीन हो सकता है। बाइडेन हुकूमत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर दोबारा गौर कर रही है। मोहम्मद बिन सलमान को अहमियत नहीं दी जाएगी। सिर्फ अल्फाज से मुतमईन नहीं होंगे, न्यूक्लियर डील पर अमल देखना चाहते हैं। खामनाई का खिताब। ईरान और रशिया की समंदरी मशक़ें शुरू। सीरिया की सूरत हाल पर तुर्की, ईरान, रशिया मीटिंग। अमेरिका ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसराइल आग से न खेले, जारहाना सरगर्मियों का सख्त जवाब देंगे। हसन नसरुल्लाह की वार्निंग। दुबई की शहजादी का वीडियो मंजर आम पर, कहा कैद में हूं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा यूएई से मामला उठाएंगे। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी। यांगून में हजारों लोग सड़कों पर। हुक्मरानों ने कहा इलेक्शंस कराएंगे।
بیرونی سفیر کشمیر پہنچے، ڈی ڈی سی چیئرمین اور دوسروں سے ملاقات، علیحدگی پسندوں نے منایا بند۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔